Hello everyone, welcome to a class of 11th account. Our topic is depreciation. Today we are going to solve question number 6 with problem is solution. Please student watch the previous video from introduction to question number 5 from this I button, and below the description all video links are there as well as our previous topic bank reconciliation statement. So you can check the description for the previous video. Today we are going to solve question number 6. So what question number 6 says that a Samarth Manufacturing Company Limited, Aurangabad, purchased a new machinery 45,000 on 1st Jan 15 and immediately spent 5,000 for its fixation and erection. That means the cost is 45,000, but additional expenditure, nominal expenditure, any type of nominal expenditure occurs while purchasing the fixed asset. That nominal expenditure we have to consider as a fixed asset. So that means we have to add this 45,000 into 5,000. So our total value comes to 50,000. So the new machinery that is purchased on 1st Jan, the total value is 50,000. So please remember this word 50,000. Now in the same year, that means in the 15 only, in the same year July, additional machinery costing 25,000 was purchased. Our second machinery was purchased on 1st July. ठीक है. बट बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ईयर एंड तो फिक्स है कि भाई ये 31 मार्च को निकालना है. तो जनवरी फरवरी मार्च यानी 15 मार्च को हमारा फर्स्ट ईयर क्लोज हो जाएगा. और ये अगली डेट सेम ईयर 2015 ही बोला है, 1 जुलाई 2015, यानी ये सेकेंड ईयर में आ रहा है. तो इसको भी ध्यान रखना है. डेट का कैलकुलेशन बताता हूँ मैं आपको. तो अपने पास दो एसेट आ गया, एसेट 1 50,000 का, एसेट नंबर 2 25,000 का. Now further he says that on 1st July 16 the machinery purchased on 1st Jan 15 became obsolete and was sold for rupees 40,000. That means in July 2016 you are going to sold a machine which was purchased on 1st Jan, that means for machine number 1. So we have to sold our machine number 1 on 1st July 16 and the selling price is 40,000. So please remember this point also. Now depreciation was provided annually on 31st March, the rate of 10% per annum. The method is fixed installment method, FIM method है ये. इसका और एक नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. यानी ये फर्स्ट मेथड ये जहाँ पे डेप्रिशिएशन अमाउंट हमेशा हर साल सेम रहेगा. पूरे साल का डेप्रिशिएशन अमाउंट इट विल रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर, दैट इज 10% पर एनम. Now they are asking to prepare machinery account for 14-15, 15-16, 16-17 in the books of Samarth Manufacturing Company Limited, औरंगाबाद. तो उन्होंने मशीनरी अकाउंट पूछा है एज वेल एज डेप्रिशिएशन अकाउंट नहीं पूछा है, मगर हम फिर भी बना देंगे कि डेप्रिशिएशन अकाउंट तो कॉपी पेस्ट होता है, तो उसको प्रैक्टिस करते रहें. कभी पूछ ले तो डेप्रिशिएशन अकाउंट बहुत सिंपल होता है, तो वो 2 मिनट में बन जाता है. तो एनीहाउ सबसे पहले हम डेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं. सो वी विल ड्रॉ अवर फेवरेट लाइन. तो year start from for April 14 and it will end on 31st March 15. So in between our first assets on 1st January 15 over here we are purchasing our asset number 1. और ये जो assets है ये आपका फर्स्ट ईयर कितना महीना यूज़ हुआ, क्योंकि यूज़ यानी डिप्रीशिएशन. हमारा टॉपिक डिप्रीशिएशन है, तो हमारा मेन जो टारगेट होता है यूज़ का होता है. यूज़ के ऊपर डिप्रीशिएशन निकलेगा. सो आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीना आपने यूज़ किया और एंड में आपको क्या प्रोवाइड करना है, डिप्रीशिएशन. और इसके पहले का साल देखना नहीं है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अभी 1 जनवरी रहेगा. ये खाली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भाई आपका फिनेंशियल ईयर होता है अप्रैल 14 से 31 मार्च 15. बट एसेट्स का जो परचेज डेट है 1 जैन, तो हमारा जो भी कैलकुलेशन, जो भी सम, जो भी लेजर बनेंगे वो 1 जैन से बनेंगे, इसको याद रखना. अब चलते हैं सेकेंड ईयर की तरफ. 1 अप्रैल 15 को स्टार्ट होगा आपका सेकेंड ईयर और बच्चों एंड कब होगा, 31 मार्च 16. अब आपका वो डेट है 1 जुलाई 2015, वो यहाँ के फिट होता है, तो उसको याद रखना है. एक चीज़ और, एसेट नंबर 1 अभी भी कंटिन्यूएशन है, यानी एसेट नंबर 1 को आप यहाँ फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करके बैलेंस निकालोगे और वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होगा एज अ बैलेंस नंबर 1. Now on 1st July 2015 we are purchasing asset number 2 for rupees 25,000. Again asset number 2 सेकेंड ईयर में आया है, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों. तो जुलाई से मार्च आप गिनेंगे तो इट विल कम टू 9 मंथ. तो एसेट नंबर 1 और एसेट नंबर 2 का दोनों का डेप्रिशिएशन का डेट है 31 मार्च 2016. मगर याद रखना एसेट नंबर 1 12 महीना यूज़ हो रहा है क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट होगा
और एसेट नंबर 2 9 महीना यूज़ हो रहा है, जुलाई से स्टार्ट होगा। तो उसको खाली ध्यान देना, जब हम डेप्रीशिएशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो उस पर डेट पे ध्यान देंगे। अब चलते थर्ड ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 16 को और एंड होगा 31 मार्च 17 को। यहाँ पे आपने क्या किया था, ऑन 1 जुलाई 16 आप एक सोल्ड कर रहे थे। क्या सोल्ड कर रहे थे, विच वॉज परचेज ऑन 1 जन, यानी एसेट नंबर 1। ठीक है, वो ध्यान देना आपको, यहाँ पे वो डेट आएगी। एंड यहाँ सबसे पहले बैलेंस लिखना है, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 तो सेकेंड ईयर सोल्ड नहीं हुई, यानी बैलेंस आएगा थर्ड ईयर में इनका, मशीन नंबर 1 एंड 2 का। फिर 1 जुलाई 16 डाल देते। क्या हुआ था, 1 जुलाई 16 को आपने सोल्ड किया था। क्या सोल्ड किया था, एसेट नंबर 1। ये जनवरी 1 15 बोला था उसने, तो एसेट नंबर 1 आप सोल्ड कर रहे हो, यानी इसकी स्टोरी यहाँ खत्म हो रही है। अब यहाँ खत्म हो रही है, अच्छी बात है, मगर आपने थर्ड ईयर इसको यूज करके बेचा है, तो वो आपको ध्यान देना। तो आपने कितना महीने यूज किया, अप्रैल मई जून। जून ही गिनना है क्योंकि जुलाई का फर्स्ट है, तो जून तक गिनेंगे तो इट विल कम्स टू 3 मंथ। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर बच्चों कि आपको जब ये सोल्ड करेंगे, यानी वर्किंग नोट 2 बनाएंगे हम लोग, सेकेंड वर्किंग नोट, तो वहाँ पे ये डेप्रीशिएशन वगैरह हमें या कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। उसको ध्यान रखना है बच्चों आपको कि 3 महीने का डेप्रीशिएशन निकालने के बाद आप इसको सोल्ड करोगे। और फिर एज यूजुअल ईयर एंड में आपको डेप्रीशिएशन निकालना है। डेप्रीशिएशन किस पे आएगा, सिर्फ एसेट नंबर 2 पे आएगा यहाँ पे डेप्रीशिएशन, क्योंकि एसेट नंबर 1 की कहानियाँ खत्म हो गई, ये सोल्ड हो गया है। तो हमारा ये डेट का कैलकुलेशन हो गया है, समझ में आ गया है। तो हम एफआई मेथड कर रहे हैं। एफआई मेथड में हमेशा मैं बोलता हूँ आपको कि आपका जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर पहले 12 महीने का डेप्रीशिएशन सेपरेटली निकाल के रखो। तो डेप्रीशिएशन फॉर 12 मंथ, अवर एसेट नंबर 1 कॉस्ट इज 50,000 ना, इसको याद रखना। तो 50,000 में आपको कितना परसेंट निकालना है, 10%, इट कम्स टू 5,000। द सेकेंड एसेट इज 25,000, इसका भी 10% निकालो, इट कम्स टू 2,500। अब हम बनाएंगे हमारा ओरिजिनल वर्किंग नोट, डेट, मशीन 1 2, टोटल डेप्रीशिएशन। टोटल डेप्रीशिएशन हमारे लेजर में काम आता है, ये बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डेट डालते हैं। मशीन 1 की डेट है जैन 15, मशीन 2 की डेट है 1 जुलाई 15। फर्स्ट ईयर में आप अब लाइन में देखेंगे आपके पास एक ही एसेट है, एसेट नंबर 1। कितने में खरीदा था बच्चों, 45 नहीं, 45 + 5 इट कम्स टू 50,000। फर्स्ट ईयर में और कोई एसेट नहीं है, तो डायरेक्टली आपको क्या प्रोवाइड करना है, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन तो हमने निकाला 5,000, बट दिस 5,000 इज फॉर 12 मंथ। क्या हमने पहले साल 12 महीने यूज़ किया, नहीं, हमने पहले साल कितना महीने यूज़ किया, 3 महीना। तो इस 5,000 को जो 12 महीने का है इसको कन्वर्ट करके बताएंगे 3 महीने में। 5,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इट कम्स टू 1250। तो फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन कम्स टू 1250। डेट याद रखें 31 मार्च 15। और इसको हमारे टोटल डेप्रीशिएशन कॉलम में भी लिख दे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो एक ही एसेट है, तो अमाउंट विल रिमेन सेम 1250। अब इसको माइनस करते हैं, WDV निकाल लेते हैं, 48,750 ऑन 1 अप्रैल 15। नाउ वी आर इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में एसेट नंबर 1 पूरा 12 महीने यूज़ हुआ, तो इसका डेप्रीशिएशन 12 महीने का, और 12 महीने का डेप्रीशिएशन हमने ऑलरेडी निकाला, कितना है, 5,000। और एसेट नंबर 2 भी आया है सेकेंड ईयर में। पहले अमाउंट डाल लेते हैं, 2 का अमाउंट कितना है, 25,000। और ये एसेट आपने 9 महीना यूज़ किया है, तो एसेट 1 का डेप्रीशिएशन 12 महीने का, एसेट 2 का डेप्रीशिएशन 9 महीने का। एसेट 1 का डेप्रीशिएशन 12 महीने का हमारे पास है 5,000, डायरेक्ट लिख सकते हैं। डेट याद रखें 31 मार्च 16। मगर बच्चों एसेट नंबर 2 जो 25,000 का है वो 9 महीना यूज़ हो रहा है, और एसेट नंबर 2 का मैंने आपको 12 महीने का डेप्रीशिएशन बताया, तो इसको कन्वर्ट कर दो 9 महीने में। सो 2,500 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इट कम्स टू 1875। अब ये दोनों को प्लस करेंगे, इट कम्स टू 6,875, और माइनस करके इनका बैलेंस लिख देंगे नीचे, 43,750, 23,125, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 16, बैलेंस है WDV। तो बच्चों हमारा सेकेंड ईयर मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड ईयर की तरफ। थर्ड ईयर में क्या क्या हुआ वो ध्यान देना आपको। सबसे पहले देखो एसेट नंबर 1 बिक गया। सो थर्ड ईयर में एसेट नंबर 1 का कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं करेंगे, अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। हाँ, एसेट नंबर 2 तो है अप्रैल से मार्च यानी 12 महीना, और 12 महीने का डेप्रीशिएशन कितना है, 2,500, एंड योर टोटल डेप्रीशिएशन ऑल्सो 2,500। इसको बैलेंस कर दे, क्योंकि एसेट नंबर 1 तो है ही नहीं, तो इसी का कैलकुलेशन आएगा 23,125 माइनस 2,500,
So WDV on 1st April is 17, 26, 25. Now the main part, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर सेल ऑफ एसेट नंबर 1. तो इसके लिए वर्किंग नोट 2 बनाएंगे यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 1st April 16, 43,750. यानी यहाँ का डेट है 43,750. तो हमने 1st अप्रैल को नहीं बेचा, हमने 1st जुलाई को बेचा है. इसका मतलब हमने 3 महीना यूज करके बेचा है. तो फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड 3 month डेप्रीशिएशन. और 5,000 एसेट नंबर 1 है तो 5,000 का 12 महीना, और ऑलरेडी तो 3 महीने का हमने निकला हुआ है 1250. तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1250 फॉर 3 month 1250. अब माइनस करते हैं तो WDV आ गया आपका 42,500. दिस इज द वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल. जब हम बेच रहे हैं उस दिन इसकी कीमत है 42,500 की. अच्छी बात है. इसी दिन आपने इसको सोल्ड किया, 1 जुलाई 16 को आपने सोल्ड किया. कितने में सोल्ड किया? 40,000 पे. तो लेस करते हैं. तो बच्चों कॉस्ट था 42,500, बेच रहे हैं 40,000 पे. तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि भाई 2,500 का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. तो ये वर्किंग नोट हमारा पूरा मुकम्मल हुआ. डेप्रीशिएशन की एक एंट्री आएगी, सेल्स की एक एंट्री आएगी, लॉस की एक एंट्री आएगी. तीनों एंट्रीज आएगी क्रेडिट में 3rd ईयर में. उसको याद रखना. हमें डेट वाइज एंट्री पास करनी तो डेट वाइज एंट्री पास करेंगे. पहले हम ये वर्किंग नोट की एंट्री पास करेंगे क्योंकि जुलाई का डेट आता है. फिर डेप्रीशिएशन की एंट्री पास करेंगे 2,500 क्योंकि लास्ट डेट पे. वर्किंग नोट मुकम्मल हुआ. अब इसी के वर्किंग नोट के बेस के ऊपर हम लेजर ड्रॉ करते हैं. तो होप सो वर्किंग नोट समझ में आया होगा. तो चलते हैं लेजर ड्रॉ कर लेते हैं हमारा. तो फॉर्मेट हमारा रेडी है बच्चों. कैलकुलेशन एंट्री स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले परचेज 1st Jan 15, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक अकाउंट. परचेज लिखा है इसलिए टू बैंक अकाउंट. एंड द वैल्यू इज 50,000. तो वी आर रिटर्न 50,000. फर्स्ट ईयर में और कोई एंट्री नहीं है तो डायरेक्ट आप डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं. योर 1250 परचेज ऑन डेबिट साइड, डेप्रीशिएशन ऑन क्रेडिट साइड. तो डेट विल रिमेन सेम 31st March 15 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 1250. पहले साल में और कोई एंट्री नहीं है बच्चों, इसको क्लोज कर सकते हैं. आपका डेबिट साइड बढ़ा 50,000, दोनों साइड लिखेंगे. इससे 1250 माइनस करें, बैलेंस आया 48,750. और बैलेंस हमेशा लास्ट डेट पे. तो बच्चों ये बैलेंस को कैरेट डाउन है तो ब्रॉड डाउन कर लेते हैं. नेक्स्ट अप्रैल में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 48,750. अब बच्चों हम लोग सेकेंड ईयर में. अब सेकेंड ईयर में आप देखेंगे बच्चों, आपने एसेट नंबर 2 परचेज किया था 25,000 का 1st जुलाई को. तो यहाँ डाल देते 1st जुलाई टू बैंक अकाउंट एसेट नंबर 2. 25,000 का आपने परचेज किया, लिख दिया आपने. फिर और कोई एंट्री नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन निकालेंगे. कितना डेप्रीशिएशन? 6875. और डेप्रीशिएशन का डेट का है 31st March 16. और डेप्रीशिएशन डालने के बाद और कोई एंट्री नहीं है तो इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं. तो टोटल आया 73,650 और इसको माइनस किए 6875 से. योर बैलेंस कम्स टू 66,875. बैलेंस ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर एंड. अब ये कैरेट डाउन है तो इसको ब्रॉड डाउन करते हैं. अप्रैल अगला साल होगा 2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 66,875. अब ये बच्चों हमारा 3rd ईयर है. 3rd ईयर में आपने क्या किया था? सोल्ड किया था. उसको भी ध्यान देना आपको. तो आपको डेट चेक करना है. पहले 31st March आएगा या 1st जुलाई आएगा? तो 1st जुलाई आएगा. तो बट ऑब्वियसली आपको ये एंट्रियाँ पहले पास करनी पड़ेगी. तो आपको ये वर्किंग नोट से हमेशा 3 एंट्री पास करनी है. एक डेप्रीशिएशन, एक सेल्स और एक लॉस की. डेप्रीशिएशन भी क्रेडिट, सेल्स भी क्रेडिट और लॉस भी क्रेडिट. डेट याद रखें 1st जुलाई 2016. 1st जुलाई 2016 बाय डेप्रीशिएशन 1250. फिर सेल्स 40,000, ये भी 1st जुलाई को रहेगा बाय बैंक अकाउंट. ये आपका एसेट नंबर 1 है. वापस से बता दूं, परचेज के लिए भी बैंक, सेल्स के लिए भी बैंक. परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में और डेप्रीशिएशन भी क्रेडिट में. फिर आपका लॉस था वो भी 1st जुलाई को था, लॉस भी क्रेडिट में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1. कितने का? 2,500 का. फिर और कोई एंट्री नहीं है बच्चों तो फिर हम ईयर के हिसाब से चलते हैं. यानी ये वाली एंट्री हमने पास कर दी. सेल्स की 3 एंट्री आ गई, तीनों पास कर दिए. अब ईयर एंड में 31st March को क्या करना है? डेप्रीशिएशन. और डेप्रीशिएशन के तो हमने वर्किंग नोट बनाया है. तो हमारा 3rd ईयर का डेप्रीशिएशन जो लास्ट में आएगा वो रहेगा 2,500 31st March 2017 को. तो पहले साल लिखें, फिर 31st March 17 लिखे बाय डेप्रीशिएशन 2,500 यहाँ से. ठीक है. तो 3rd ईयर में आपने 2 बार डेप्रीशिएशन लिखा है, उसको याद रखें. एक जुलाई में आया था और एक 31st March को आया था.
अब और कोई एंट्रियाँ नहीं है बच्चों, तो अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो आपका डेबिट साइड ही बड़ा है 66875, इसको क्रेडिट के इन चारों से माइनस करेंगे तो बैलेंस लास्ट डेट में आएगा 20,625। कैरी डाउन है तो ब्रॉड डाउन करके अब आपका लेजर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट मुकम्मल हुआ। अब इसी के बेस पे हम बनाएंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट। नहीं पूछा था फिर भी हम बना रहे हैं। डेप्रीशिएशन अकाउंट सिंपल होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है ईयर वाइज। तो चलते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हमने लेजर बना दी, ये कॉपी किया यहाँ पे मैंने लेजर को। आप लेजर के नीचे ही मशीनरी डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सिंपल वे ईयर वाइज बनाएंगे। जैसे लेजर आपने ईयर वाइज बनाया तो उसी तरह डेप्रीशिएशन अकाउंट भी ईयर वाइज बनेगा। तो सिंपल आपको फर्स्ट ईयर में चेक करना है कि आपका डेप्रीशिएशन कितने बार लिखा है, एक ही बार लिखा है, ठीक है। उस यहाँ पे क्रेडिट है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, डेट विल रिमेन सेम, अमाउंट विल रिमेन सेम एज इट इज, कॉपी करेंगे। खाली पर्टिकुलर आप क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डेप्रीशिएशन अकाउंट लिखा था अपोजिट नेम, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखना है, मशीनरी अकाउंट। और कोई एंट्री नहीं है तो उसको क्लोज कर देना आपको सिंपल वे में, क्योंकि डेप्रीशिएशन अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं आती है डेप्रीशिएशन के अलावा। तो पहले साल में एक ही था तो एक लिख दिया, उसको क्लोज कर दें तो आपका बैलेंस भी ये रहेगा। और बैलेंस भी फिक्स है, लास्ट डेट ऑफ द ईयर एंड, और उसको नाम देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो होप सो सिंपल है बच्चों, ये बहुत आसान है। तो अब देखो सेकेंड ईयर में क्या करोगे आप, अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में भी एक ही डेप्रीशिएशन है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड, डेट क्या रहेगा 2016 31 मार्च, अमाउंट भी सेम रहेगा। खाली आपको पर्टिकुलर में क्या लिखना है, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। डेट सेम, अमाउंट सेम। सेकेंड ईयर में एक ही डेप्रीशिएशन है, उसको भी बंद कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर का नाम P&L हमेशा फिक्स है। और ईयर एंड में तो ईयर एंड तो है ही है यहाँ पे, तो 31 मार्च 2016 को 6875। अब बच्चों देखना है हमें हमारा थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट है, 2 बार डेप्रीशिएशन है, एक 1 जुलाई को है और एक 31 मार्च को है। तो हेडेक नहीं लेना, आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। तो 2016 जुलाई 1 1250 पहले वो लिखेंगे, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट। और फिर अगला डेप्रीशिएशन है 2017 31 मार्च 2500, तो यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड लिख देंगे 31 मार्च को टू मशीनरी 2500। सिंपल वे में तो कॉपी किया हमने। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, क्लोज कर देना, क्योंकि डेप्रीशिएशन में सिर्फ डेप्रीशिएशन एंट्री आएगी। तो एक डेप्रीशिएशन हमने पास कर दी, 2 थी दोनों पास कर दी। तो आपका बट ऑब्वियस डेबिट बढ़ा है तो डेबिट का टोटल करें दोनों साइड 3750, और बैलेंसिंग फिगर भी ये रहेगा। अभी देखो बच्चों, बैलेंसिंग फिगर हमेशा मैं बोलता हूँ लास्ट डेट ऑफ द ईयर एंड। तो आपका ईयर एंड का डेट है 2017 को, 16 को नहीं है, 16 को स्टार्टिंग है आपका। यहाँ देखो थर्ड ईयर का ओपनिंग है, फर्स्ट ईयर 16 और एंडिंग है 31 मार्च 17। तो P&L यानी फाइनल अकाउंट में जो एंट्री पास करते हैं वो लास्ट डेट में 31 मार्च को। तो ईयर एंड आपके यहाँ साल याद रखना, अब 2017 लिखना है आपको, 2017 31 मार्च बाय P&L अकाउंट 3750। ये मिस्टेक एरिया होता है कि बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं सेम फिगर, तो आमने सामने तो बोले ये भी लिख दे। नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर है, P&L यानी बैलेंसिंग फिगर है ये। अब पहले साल में एक था तो इसलिए एक ही एंट्री है, दूसरे साल में एक था इसलिए एक है, मगर अब तीसरे साल में बच्चों 2 एंट्री है, कभी 2 आएंगी कभी 3 आएगी। तो आपको हर एक के सामने P&L नहीं लिखना है, P&L इज अ बैलेंसिंग फिगर, और ये एक ही रहेगा। और ये ट्रांसफर होता है ईयर एंड में 31 मार्च को। तो इस चीज़ का इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना। होप सो ये समझ में आया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये SLM FIM ओरिजिनल कॉस्ट का लास्ट मेथड हमने किया। हमने ये अगले वीडियो से हम इंशाल्लाह WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो हमारा सेकेंड मेथड है, उसको स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।